नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। सबसे पहले बात होगी अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ती तनातनी की। जिस अमेरिका के भरोसे यूक्रेन पिछले 3 साल से रूस के साथ जंग लड़ रहा है, अब उसी अमेरिका के साथ उसकी ठन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में सरेआम तीखी बहस हुई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से जब जेलेंस्की की हॉट टॉक हुई तो बीच में ट्रंप कूद पड़े और जेलेंस्की को जबरदस्त फटकार लगाई। व्हाइट हाउस में दो वर्ल्ड लीडर्स की ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई है। ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन रूस के साथ समझौता कर ले, लेकिन जेलेंस्की ने इसके लिए इनकार कर दिया, जिससे ट्रंप का पारा भी चढ़ गया और उन्होंने जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाते हुए अमेरिका की मदद का एहसान जताया। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि जेलेंस्की बीच में ही बातचीत छोड़कर व्हाइट हाउस से वाट होटल के लिए रवाना हो गए। ट्रंप ने तो सीधे बोल दिया कि जेलेंस्की का रवैया समझौता करने के लायक है ही नहीं। जेलेंस्की ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब इस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, इसकी नजर अब सबकी लगी है क्रेमलिन में। लेकिन सबसे पहले व्हाइट हाउस में दो वर्ल्ड लीडर्स के बीच हॉट टॉक हुई, वो आपको सुनाते हैं। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. और दोनों नेताओं के बीच बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप लगातार अमेरिकी मदद का एहसास जताते रहे, जेलेंस्की पर सीजफायर का दबाव बनाते रहे, लेकिन जेलेंस्की अपनी बात पर अड़े रहे। See, I think it's good for the American people to see what's going on over there. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. I can tell you You're again, running low on soldiers. Listen, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question. दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मिनरल डील के लिए अमेरिका दौरे पर आए थे। अमेरिका हर हाल में अपनी शर्तों पर मिनरल डील कराना चाहता था और इसके लिए ट्रंप लगातार जेलेंस्की पर प्रेशर भी बना रहे थे। जिन मिनरल्स पर डील होनी थी वो रेयर हैं। जेलेंस्की को अच्छे से मालूम था कि अमेरिका की नजर उनके खनिजों पर है, इसलिए जेलेंस्की भी हार्ड डील कर रहे थे। The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing.
और जेलेंस्की के व्हाइट हाउस में बीच में ही मीटिंग छोड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी ओवल ऑफिस से बाहर निकले और मीडिया के सामने जेलेंस्की के साथ बहसबाजी को लेकर सफाई भी दी और दुनिया के दूसरे देशों को भी यह साफ मैसेज दिया है कि अमेरिका अपने स्टैंड पर अब अडिग है। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. It's looking to go on and fight, fight, fight. We're looking to end the death. 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died this week. Young Ukrainians and Russians. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that. Not for this country. यूक्रेन और रूस के बीच जब जंग शुरू हुई थी तो यह माना जाता था कि यह जंग मुश्किल से 1 महीने चलेगी और रूस आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे नेटो देशों ने यूक्रेन का साथ दिया और अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। सेना से लेकर हथियार तक मुहैया कराए गए, लेकिन जो तस्वीर व्हाइट हाउस से आई है उसके बाद कई नेटो देश अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ अभी भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमला रूस की तरफ से किया गया, यूक्रेन ने हमला नहीं किया, इसीलिए फ्रांस यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने कहा कि जर्मनी समेत पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन हम पर भरोसा कर सकता है। स्पेन और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कही है। दरअसल पूरे विवाद की जड़ यूक्रेन में मौजूद वो खनिज है जो रेयर और रेडियो एक्टिव है और अमेरिका के पास नहीं है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के अलावा यूक्रेन के पास है, जैसे कि लिथियम, टाइटेनियम और ग्रेफाइट। अमेरिका चाहता है कि जंग में मदद के बदले यूक्रेन अपने खनिजों का खजाना उसके हाथ पे सौंप दे। ट्रंप ने जेलेंस्की पर इसी को लेकर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने के लिए होता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप की बैटरी लिथियम की होती है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। टाइटेनियम का इस्तेमाल एविएशन और पावर इंडस्ट्री में किया जाता है और इसके अलावा कुछ रेयर रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी हैं जो सिर्फ यूक्रेन की धरती पर मौजूद हैं और अमेरिका की नजर इन्हीं खनिजों पर है। और जेलेंस्की भले ही बातचीत के बीच व्हाइट हाउस से गुस्से में निकल गए, लेकिन उन्हें भी पता है कि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका के बिना यूक्रेन का टिकना संभव नहीं है। अगर आज अमेरिका हाथ खींच लेता है तो रूस यूक्रेन का जंग क्या अंजाम हो सकता है वो भी हम आपको समझाते हैं। अमेरिका की सैन्य मदद के बिना यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जंग में यूक्रेन को हो रही मदद का 1/3 अमेरिका से मिलता है। अमेरिकी हथियार और अमेरिकी सेना इस युद्ध में यूक्रेन की बैकबोन है। अमेरिका अगर पीछे हटा तो रूस की सेना तुरंत हावी हो जाएगी। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि 2022 में जब जंग की शुरुआत हुई थी तो कुल मिलाकर जो मदद यूक्रेन को मिल रहा था विदेशी मुल्कों से, उसमें 7% अमेरिका की हिस्सेदारी थी, लेकिन वही 2025 में हिस्सेदारी बढ़कर 41% तक चली गई है। और अगर आज यह मदद रुक जाती है अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को, तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिन वो टिक पाएगा। वहीं अगर बात करते हैं ये डील कितना इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए, जो मिनरल डील का हम जिक्र कर रहे हैं वो बेहद है, क्योंकि चीन के साथ जिस तरह से अमेरिका की इस वक्त विवाद शुरू हुई है ट्रेड को लेकर, उसमें 70% इसी तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका चीन से आयात करता है, जिसे वो बंद करना चाहता है। खैर, अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की, जहां चमोली में चल रहे ऑपरेशन में जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। चमोली में एवलांच के बाद बर्फ में दबे मजदूरों को बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चमोली में 14 और मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है और इस तरह से अब तक कुल 46 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अब 9 मजदूर फंसे हैं जिन्हें अब निकाला जाना है, जिसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि बचाव का काम लगातार जारी है, फंसे हुए श्रमिकों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वहीं पर पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से फोन पर बात करके रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अपडेट लिया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं।
Mi-17 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाई पर रखा गया है। माणा के पास नया हेलीपैड तैयार किया जा रहा है क्योंकि पुराना बर्फ में दब चुका है। घटनास्थल पर मेडिकल टीम भी मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। मौसम चुनौती बना हुआ है, लेकिन एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके चलते और ज्यादा वक्त लग रहा है। सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माना गांव में हुई है, लेकिन इस वक्त मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही है। खास तौर पे यहां पर हवाई मार्ग के जरिए जो सहायता पहुंचानी है या जो घायल उनको लाना है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वहां से काफी दूर तक जाना पड़ रहा है एयर एम्बुलेंस के लिए। लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। और सीएम धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू के लिए कुछ और टीमें घटनास्थल के रवाना की गई हैं। 150 सैनिक रेस्क्यू में शामिल हुए हैं। यह घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माना गांव में हुई है। अब मजदूर 3200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 6 फीट तक जमी बर्फ में फंसे हैं। हादसे के दौरान सभी मजदूर थे 8 कंटेनर और एक शेड में मौजूद थे, जिसके वजह से कई लोगों को मौके पर से रेस्क्यू किया गया है और उनकी हालत अब स्थिर है। मौसम लगातार खराब चल रहा है वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल 2 बार कंट्रोल रूम का भ्रमण किया गया। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल अपडेट ली गई और राहत एवं बचाव जो कार्य हमारे हैं बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। हमारे 200 से ज़्यादा लोग मौके के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं। 4 हेलीकॉप्टर हमारे उड़ रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर सरसावा से, 2 सहस्रारा हेलीपैड से। आवश्यकता पड़ेगी और अधिक सेवाएं ली जाएंगी। भारतीय वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर हमारे पास तैयार है आने के लिए। जो ही मौसम खुलता है वो आ जाएगा। और उत्तराखंड के चमोली में अवलांच को आए 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। अवलांच शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब आया था और बॉर्डर प्रोजेक्ट में कुल 57 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 2 लोग छुट्टी पर थे। तो अवलांच में 55 लोग चपेट में आ गए, जिसमें से 46 लोगों को बचाया जा चुका है। 9 को रेस्क्यू के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है। हमारे पास 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। एक तरफ चमोली में मिशन जिंदगी चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में बर्फबारी भी लगातार हो रही है। चक्राता की ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। घरों से लेकर सड़कों तक बर्फ की सफेद चादर जमी है। टूरिस्ट खुश हैं, लेकिन आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से हर तरफ आपको सफेद चादर नजर आएगी बर्फ की। घरों पर, पेड़ों पर, सड़कों पर मोटी परत जमी हुई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी मौसम की मार से लोग परेशान हैं। पहाड़ से गिरे बोल्डर से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बुलडोजर को रास्ते से मलबे को हटाने के लिए लगाया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, अब जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अभी तक यह सड़क खुल नहीं पाई है। अब उत्तराखंड ही नहीं, इस वक्त पहाड़ी इलाकों में आसमानी आफत हर तरफ बरस रही है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है।
10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक बर्फबारी हो रही है, तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लेकर मनाली और मंडी तक बर्फबारी और साथ ही लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश के हालात दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नाले में बह रही गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों पर हुई बारिश ने किस कदर परेशानी बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड के बाद अचानक आए मलबे में सब कुछ बहता चला गया। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश से जगह जगह भारी तबाही हुई है। इस वक्त मैं कुल्लू के भूतनाथ ब्रिज के पास हूं। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये दरअसल श्रवणी नाला है और कल यहां पर जैसे ही बारिश का पानी जो था वो सैलाब की तरह आया, उसके बाद यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो ताश की पत्तों की तरह बहती हुई नजर आई। फिलहाल यहां से तमाम जो गाड़ियां हैं वो निकाल ली गई हैं। महज एक गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर जो इस वक्त यहां पे मलबे के अंदर दबी हुई है, मारुति कार है और पूरी तरह से मलबे के गिरफ्त में है। और ये जो रास्ता है दरअसल ये आम लोगों के लिए पैदल जाने का रास्ता था और इसके साथ में कुल्लू दशहरे को देखते हुए टेम्परेरी पार्किंग बनाई गई थी। लेकिन जब यहाँ पर बाढ़ आया, पानी का सैलाब आया और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी वो तस्वीरों में साफ दिख रही हैं कि कैसे वो पानी में तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही थी। और पूरा का पूरा ये जो रास्ता है ये मलबे में जो है इस वक्त तब्दील हो चुका है। मैं जिस रास्ते पर अब चल रहा हूँ ये पगडंडी बनी हुई है, पक्का रास्ता था ये, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है कि क्या ये वाकई में रास्ता था। आप तस्वीरें देखेंगे तो लोग किस तरह से इस पुल को पार कर रहे हैं। आगे के पूरा का पूरा मलबा जो है उसने सड़क को ढक लिया है। ये गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी भी पानी के बीचों बीच सैलाब में फंसी हुई है। कुछ इसी तरह का मंजर कल यहाँ पर था। काफी ज्यादा गाड़ियां जो थी वो यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह, तिनके की तरह बहती हुई यहाँ पर नजर आई। पानी की रफ्तार अभी भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी यहाँ पर अभी भी आपको नजर आएगा। काफी तेज गति से पानी जो है ये श्रवणी नाला जो है आगे ब्यास नदी में मिल जाता है। सामने आपको ब्यास नदी जो है वो नजर आएगी और ये जो नाला है आगे जाके ब्यास नदी में मिल जाता है। और ये सिर्फ एक जगह का मंजर है, ऐसे मंजर कई जगह पर यहाँ पर दिखाई दिए जब यहाँ पर ये गाड़ियां जो थी यहाँ पर बह रही थी। ये एक टेम्परेरी पार्किंग जो थी वो बनाई गई थी दशहरे के दौरान यहाँ पर मलबा डालकर और लोग इसे अभी भी इस्तेमाल कर रहे थे। और जब यहाँ पर एकाएक पानी आया उसके बाद किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और गाड़ियां यहाँ पर बहती हुई नजर आई। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या कहना है उनका, उनसे पूछते हैं कल कैसा मंजर था जी यहाँ पे भाई साहब। तो बहुत भयंकर था, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या देखा आपने? देखा क्या, इतना पानी था कि पूछो मत आप, है ना। जो ये 2023 में बाढ़ आई थी उसके बाद ऊपर क्रेड वॉल जो इन्होंने दिए नहीं इन्होंने। अच्छा। वहाँ 4-5 क्रेड लगे और उसके बाद 10 क्रेड और लगे होते थे, ये पानी नहीं आता था अंदर। तो ये क्या कुल्लू का जब दशहरा होता तब पार्किंग बनाई गई थी इसको? हाँ, 2 साल से ये पार्किंग बनाई हुई थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कल जो गाड़ियां खड़ी थी यहीं से बहती हुई नजर आ रही है? नहीं, गाड़ी कोई नहीं बही, मतलब कि ये गाड़ी यहीं लगी थी और ये यहीं दब गई है नीचे। जो गाड़ियां जो पानी में फंसी हुई नजर आ रही वो सब निकल गई थी। अब निकल गई? हाँ निकल गई। एक गाड़ी थी बची हुई, सवेरे निकाल दी। अच्छा, सुबह निकाल दी वो। आपने देखा कल यहाँ पे? नहीं, ये मैं तो फर्स्ट टाइम ही देखा कुल्लू का ये, पर पानी काफी ज्यादा था। अच्छा, हाँ जी। कैसा मंजर था? डरने लायक था मंजर जो भी था। तो क्या और भी ये तो रास्ता है मेरे ख्याल से जाने का? ये रास्ता है, गाड़ी का रास्ता है ये। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो ये आगे कहाँ चले जाता है? ये हनुमानी बाग को अब तो रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया? खत्म हो गया। दूसरे रास्ते से। अच्छा। पर ये शॉर्ट रास्ता था यहाँ से जो अपना अखाड़े से अपना डालपुर के लिए, उसके लिए अपना जी। हाँ जी हाँ जी। तो बिल्कुल ये रास्ता खत्म हो गया, ये खत्म है रास्ता ये। अब कमेटी वाले देखे बनाए ये अपना। तो अभी भी कोई गाड़ियां फंसी हुई हैं? सब निकाल ली? सब निकली है, सारी गाड़ी निकल गई है। अब कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर यही फंसी हुई है बस? ये एक गाड़ी फंसी है। ये भी पार्किंग में ही थी गाड़ियां, ऐसा नहीं कि गाड़ियां पार्किंग में थी लेकिन जब पानी आया तो उसमें मतलब हाँ उसमें बह गई ये। अच्छा। तो ये स्थानीय लोग हैं, जब यहाँ पर कल बाढ़ का मंजर यहाँ पर बना, क्योंकि अचानक जैसे ही पानी आया और उसके बाद जो जहां पर गाड़ियां खड़ी थी वो उस पानी की चपेट में आई और वो तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। बहरहाल गाड़ियां यहां से निकाल ली गई हैं। एक गाड़ी जो है अभी भी फंसी हुई है और नुकसान जो है वो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि कुल्लू में काफी जगह नुकसान जो है वो हुआ है। ये पहली तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं कि भारी भरकम जो गाड़ियां जो थी वो तिनकों की तरह बहती हुई नजर आ रही थी।